start with our invocation, which is special to Ken Upanishad. Take a deep breath in. Om Sahana Vavatu Sahanau Punaktu Saha Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. तो आज केन उपनिषद का थर्ड सेशन है और जैसे आप लोगों को मालूम है वी आर डूइंग वर्सेस 5, 6, 7, 8 and 9. वर्सेस लेने के पहले हम लोग एक कहानी से शुरू करते हैं. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक देश में एक बहुत बड़ा राजा था. वो बहुत ध्यान से अपना मंत्री, जो कि उसका प्रधानमंत्री था, वो वजीर समझ लीजिए, तो वो उसकी डेथ हो गई और इस राज्य में बड़े ध्यान से वो लोग वजीर को चुनते थे. Selection of the wazir was a big thing in this Rajya. So what happened? It was declared that we need to choose a new wazir, and everybody, whoever considered himself intelligent, was eligible for this contest. And so far, the contest happened far and wide, and finally 3 finalists were selected, and they came to the capital or where the Raja was, and they became the guests of the Raja, and the next day they were going to be put to the test. Now, as in today's day and age, papers leak, you know, and students come to know what is going to be there set in the paper. So here also the paper leaked, and everybody came to know that the contest was like this, that these 3 people were going to be shut up in a room, and the lock was a very special lock made by the greatest engineers, technicians and mathematicians of that particular kingdom. And there was no key to the lock, but there was a code which was written over there, and whoever could crack the code, he would be able to open that lock and get out of the room, and the king would be standing just outside the door, and he would actually welcome the person who has come out the first as his new wazir. So, since the paper was already out, 2 of these 3 contestants, they decided to run to the market, buy all the books which had some decoding or how to open a lock. So all those kind of manuals they purchased, and they studied them all night. Perhaps one of those ideas would be useful to them the next morning. However, that all-night study had really tired them out. There was this other person. He to just, lay on his bed and relaxed and slept the whole night peacefully. And the next morning, he also came over there. So these 2 immediately started, they were cracking at the code. The other person, he just sat quietly in one corner of the room, trying to gauge the situation. What had happened? The king had entered the room. He had explained the problem to the 3 contestants, and then he had gone out of the room, locking the door. So this fellow, he kept on sitting over there, and the other 2 thought, oh, this person is finding it too much of a problem for him to crack. So he has sort of retired
from this contest. And they were so busy cracking at that, trying to decode that problem and open the lock, that they did not even realize when this third contestant got up from his seat, he quietly pushed the door open and just walked out. And there the king was already waiting. Now the king and this man entered. The king declared that this is the new Wazir, because he has that fine intuitive sense to know that when the Raja could walk out of the door without having had to crack anything, to decode anything, how has it happened? This fellow with a quiet mind. The important thing over here is what Gurudev constantly tells us: when we go into meditation, we have to be relaxed. And with a quiet mind, we can solve not only our spiritual problems or this confusions that we have, we can also solve our day-to-day earthly problems that beset us on the functional plane. Okay. So this is just a faint indication. And as it happened, Manisha's question at the beginning of the session was this, that what is this, when this Brahma Tattva or the Shiv Tattva is so in and out of us all the time and so close to us, what is this concept of freedom and bondage with which we are beset? How is it that we are in bondage? Wasn't that your question, Manisha? Isn't it? So we are going to see how we can solve this problem and how we can actually come upon that all-pervading essence or the substratum which is common to everyone. We will now start with shlok number 5. Vad vachan abhyuditam. Vad vachan abhyuditam. Vena Yena vag abhyudate. Abhyudate. Ha. Tadevam Tadevam Brahma Brahma Tvam Tvam Viddhi Ned Vidhi Ned Vaditam 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 Upasate. Mupasate. Ha. That which cannot be expressed by speech. So here, as we know, in the Kain Upanishad, they are using both the disciple as well as the teacher are using very paradoxical language. So he's saying that which cannot be expressed by speech, that which speech, by which speech is expressed. ब्रह्म को डिस्क्राइब करते हुए ऋषि कह रहा है that which cannot be expressed by speech, that which by which speech is expressed, know that alone to be Brahma. जिससे वो जो अंडरलाइंग फोर्स है, जिसके बारे में हम बोल करके बता नहीं सकते हैं, जिसके एक्सप्रेशन के लिए या जिसके कॉग्निशन के लिए सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, वो ब्रह्म है. नॉट दिस विच पीपल वर्शिप. वो डिवाइन एसेंस है जो सबसे ऑल इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे यूनिवर्स में. वो ही होएगी ना जो पावर, जो हमको पावर देता है कि नहीं? जो भी चीज हमको पावर देती है. मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है तो उसको एक ही चीज से मतलब रहता है. वो कहता है इस चीज से पावर मिलेगा क्या, मुझे पावर चाहिए.
तो हम लोग को सबको भी पावर के भूखे हैं हम। अगर हम पैसे के पीछे भागते हैं तो भी हम पावर चाहते हैं। तो ये ऋषि क्या कह रहा है, जो कुछ इंद्रियां हमको दिखाती हैं उसमें हमको जो कुछ भी पावरफुल लगता है उसके पीछे हम भागते हैं, है कि नहीं है? उसको हम वर्शिप करते हैं। दिस, जब वो कहता है दिस, ये संसार, ये सारा वर्ल्ड, ये सारा टेरेस्ट्रियल प्लेन, इसके पीछे जिस के पीछे भी हम लोग भागते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो विजिबल ही नहीं है। ब्रह्म इज द अनदर वर्ड फॉर दैट पावर। तो कहता है कि वो जो कि तुम्हारी स्पीच को पावर दे रहा है, उसके ऊपर तुम्हारी नजर नहीं जाती ना, उसके ऊपर तुम्हारी नजर नहीं जाती जो तुम्हारी स्पीच को पावर दे रहा है। तो नजर, ये वाली नजर तो जा ही नहीं सकती, अंदर की नजर जाती है। जब ये नजरें बंद हो जाती हैं तब अंदर की नजर जाती है। इसको हम थोड़ा सा और समझाएंगे तब हमको समझ में आएगा। अब ये वाक, वाक हमारी कर्म इंद्रिय है ना। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो वाक is one of the karma indriyas. Can anybody tell me why it comes as a karma indriya and is not considered a jnana indriya? There are 10 senses which we have been blessed with. The 5 sensory in this thing, sense organs are what? Tell me. Eyes, nose, ear, skin, and tongue, which you asked a question, because it does the work of speech, and also the taste, also the gyan of taste. So it is So the tongue is has double purpose, double function. At one time it is a karma indriya and at one time it is a jnana indriya. Tasting, where you are taking information in, all those are ज्ञान इंद्रियास। आंखों से हम देखते हैं और संसार के बारे में जानते हैं, तो हम अंदर लेते हैं। तो आंख हमारी ज्ञान इंद्रिय हुई, कान से हम सुनते हैं, कुछ भी अंदर ले रहे हैं, टेस्ट से हम अंदर ले रहे हैं, और नाक से घ्राण, जहां पर कि हम सूंघते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन, इस संसार की इंफॉर्मेशन जिन जिन चीजों से अंदर ले रहे हैं, जिन जिन ऑर्गन से अंदर ले रहे हैं, those are our sensory perceptions, those are called ज्ञान इंद्रियास। और जिससे भी एनर्जी इस शरीर से बाहर की तरफ जाती है वो हमारी कर्म इंद्रियां हो जाती है। तो कर्म इंद्रियां क्या क्या है, कौन बताएगा? हाथ, पाँव। हाँ, हाथ, पाँव और वो गुदा मतलब जो वो है, हाँ, एक्सक्रीटरी और तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और जनन इंद्रियां, तो ये हमारी कर्म इंद्रियां हो गई। तो ये हमारी 5 कर्म इंद्रियां। तो जब इन्होंने, ऋषि ने वाक के बारे में बात करी, तो ही इज कवरिंग ऑल द 5 कर्म इंद्रियास। Previous to this, he had been talking about the ज्ञान इंद्रिया, जो आंखों की आंख है, जो कानों का कान है, वो सब हमारी ज्ञान इंद्रियों के बारे में ऑलरेडी उसने कवर कर लिया है। अब वो कर्म इंद्रियों पर आया और वाक की बात करता है कि जो स्पीच से बखान जिसका नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्पीच को भी ताकत देता है, वो ब्रह्म है, वो ही पूजनीय है। और वो चीजें पूजनीय नहीं है जिनके बारे में हम अनेकों शब्द, बहुत ही इलैबोरेट लैंग्वेज यूज करके उसका बखान करते हैं कि वो इतनी सुंदर है, ये है, वो है। वो ब्रह्म नहीं हो सकती, वो पूजनीय नहीं हो सकती, वो इस संसार में ऑल पावरफुल नहीं हो सकती। समझ गए कि नहीं?
तो हमको उस तत्व तक पहुंचना है जो कि इस स्पीच को भी धारण करती है, इसको स्पेस देती है, इसको पावर देती है ना। हमारे लिए ब्रह्म तो केवल एक्सपीरियंस है. Only when we experience it, we can know what Brahman is. Yes, it is absolute. It is the self. We Yes. do not experience. This experience is not like any other experience that Yes. we have in the world. It is the experience of being. You understand? Yes. तो ब्रह्म के बहुत से, ये मैं आपसे बताने चाह रही थी. मैं इस सेशन के अंत में ये अपनी भी ये इंसाइट देना चाह रही थी कि ब्रह्म हमारा सोर्स ही नहीं है, लेकिन वो ही तो हमको फोर्स देता है. सोर्स भी है, फोर्स भी है, और हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी यही पैदा करता है. इसलिए ये हद से ज्यादा मैजिकल सब्सटेंस है. इट इज नॉट an ordinary thing. It is not made of the same dimension as anything else that we can come upon in this world. तो यहाँ पर इसके explanation में कहा गया है that the Guru hammers in the truth of God in these 5 consecutive mantras that we are going to take up just now from 5th to 9th, and it takes them up very powerfully, and it denies the wrong concepts held by people at large. He declares God to be pure consciousness within all beings. With his resounding words in the last 9, he pronounces this truth verbatim in each and every one of the 5 mantras. मतलब ये जो last line है ना, तदेवम ब्रह्म त्वम विद्धि नेद वदितम उपासते, वो है उपासना के रूप. Only that is worth worshipping, and not any of the other things which can be described by speech or which can be looked at by the eyes. एक मैं आपको simple example देती हूँ. Suppose एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं आपको आपकी असलियत दिखा सकता हूँ, ठीक है, और वो दिखाता भी है. वो एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने एक विजन पैदा कर देता है, और एक विजन में एक इतना सुंदर फॉर्म दिखाता है, और वो कहता है ये है आप. तो आप कहते हैं कि आपने जो दिखाया वो तो बहुत सुंदर था, लेकिन मैं वो कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इसे देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं हो सकता. तो इस तरह से जितने भी फॉल्स चीजें लोग हमको बताते हैं, तो यहाँ पर ऋषि ने कहा कि किसी के भी धोखे में मत आना. कोई भी तुम्हें उस मोस्ट पावरफुल चीज का दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि वो भीतर का एहसास है, जैसे कि अभी शशि जी ने हमसे कहा. लेकिन अब यहाँ पर देखिए, he may be denouncing Sagun worship, but he is not actually talking about Sagun worship. हम जब किसी को भी इष्ट को अपने सामने रख करके उसके अंदर एक डिविनिटी का एक कॉन्सेप्ट डालते हैं, तब हम एक्चुअली केवल इतना कह रहे हैं कि हमको एक आकार की जरूरत है फॉर अस टू मेक आवर अटेंशन सिंगल पॉइंट. क्योंकि हमारे अंदर इतने ढेर से थॉट्स आते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए. उन सबको काटने के लिए हमने एक सगुण इष्ट का एक कॉन्सेप्ट अपने सामने रखा. वो सगुण का कॉन्सेप्ट रखने से हमारा माइंड जो 1000 जगह जा रहा था, वो वहां पर जाना बंद हो गया. उस एक में हम दिव्यता देख करके फिर हम बाकी सब चीजों को अपने जहन से हटा करके हम आगे बढ़ सकते हैं. और यहाँ पर मैं आपको एक डे टू डे का एग्जांपल देती हूँ. अगर हम पॉट को भी पकड़ करके रखें, तभी भी हम अपने साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं. तो जैसे हम ये कहें कि भाई नेशनल फ्लैग, आजकल नेशनल फ्लैग की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उसको तो हम पकड़ करके रखें, लेकिन नेशन
के प्रति हमारे अंदर कोई भी फीलिंग या पेट्रियोटिज्म की भावना नहीं। तो केवल इष्ट को पकड़ के रखने से हम अपने ही आप अपने ही साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में रहने के लिए तो नहीं जाते ना, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां दवा दारू हो गई, क्योर होकर के हम वापस आना चाहते हैं, है ना। हॉस्पिटल में रहने के लिए तो हम नहीं गए। इसी तरह से इष्ट की वर्शिप है। What happens is we lose track of our ultimate aim when we allow ourselves to digress to things of either material importance or a particular form only. ऐसे देखा जाए तो सारे जितने भी धर्म हैं और जितने भी हमारे इष्ट हैं, वो उसी ब्रह्म की वजह से हम उनको पहचान सके हैं या हमने उनको एक फॉर्म दिया है। They are all the religions are like so many rivers that are emerging from the same source. Understand? So we do not have to disregard any of the religions. We have to see where they are pointing. अब देखिए, मैं एक वर्ल्ड रिलीजन्स की कॉन्फ्रेंस में गई थी जो कि 2000 में न्यूयॉर्क में हुई थी। Gurudev was also invited to speak over there. Now what happened? Gurudev was speaking Indu Mate. Those of them or those of us who know Indu Mate will find it interesting. She also was speaking in this conference. And so we were like, running around for Indu Mate and trying to think what she should be saying in this conference. And she was waiting for the words to come from Times of India. So we had written something and we were trying to make her learn. At the last minute, the Times of India speech came, and we were trying to see that she really memorizes. So she neither spoke what we had given her. She did not speak anything which the Times of India people had written for her. She was speaking in the divinity being a feminine, as the feminine aspect of divinity. So she came up with a absolutely fresh and new idea. In our culture, all the most important departments are in the hands of the feminine. And she said, Durga takes care of our defense, and Saraswati is the Minister for Education, and finance is handled by Lakshmi. So she just put everybody in place by really speaking about our culture. So I am not saying anything to decry our culture. I have no problem in anybody having an isht which they hold much above themselves, and they must hold it above themselves. I am only saying that simultaneously we should look at the source which has given rise to all these concepts. जैसे गीता में भी भगवान ने कहा कि पर्वत में तुम मुझे हिमालय जानो, नदियों में मुझे गंगा जानो। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मैं गंगा में हूँ या केवल मैं हिमालय में हूँ, मैं सब में मेरे को देखो। एक खाली मेन अपने को इसलिए केंद्रित करना है कि जो उच्च है उसमें देखो, और मैं वही उच्च सब में हूँ, वही उच्च सब में हूँ। Very true, very beautiful said. So now we will take the 6th verse. One manasa na manute, वन मनसा न मनसे, vena hur mano matam, वेना hur mano matam, मनोमतम, tadeva brahma, तदेव ब्रह्म, tam vidhi nedam, तत्त्वं विद्धि नेदम नेदम, viditam upasate. विदितम उपासते। उपासते। That which cannot be visualized by the mind. अब देखिए माइंड पर आ गया, और माइंड हमारी 6th ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है।
देखिए हमारी छठी इंद्रिय बोलते हैं ना, अंतःकरण उसको बोलते हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो माइंड हमारी 6th इंद्रिय है। तो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। That which cannot be visualized by the mind, that by which the mind visualizes, know that alone to be Brahma, not this which the people worship. ये लास्ट लाइन सब में कॉमन है, तो इसको हर बार बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब मन शब्द में क्या क्या चीज इंक्लूड हो जाती है? It indicates our thoughts and our imagination, our emotions, feelings, memory, intellect and ahankar. All this is included in the word man. तो ऋषि क्या एम्फैटिकली क्या कह रहे हैं कि मन की फैकल्टी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जो इस मन को ही चेतना देता है। अब मन क्या करता है? मन कितने ही ऑब्जेक्ट्स पर ठहरता है। मन जिस पर आ जाता है उसे ही पूजने लगता है। तो जिसे भी मन अपना पूजनीय बनाता है वह उसकी उपासना करता है, लेकिन ब्रह्म वो नहीं है। मन की सारी एक्टिविटीज से अत्यंत परे, far removed from anything which the mind can do, that tattva, that elemental quality is the Brahma. मन में इंटेलेक्ट है, इस इंटेलेक्ट से अति सूक्ष्म, very highly subtle, much more subtle than the intellect. What is the intellect? Intellect is the entire data that we have collected in this lifetime. Our mind is the product of all the data which we have collected in this lifetime. So what comes out of the mind? Something which has already been fed. So this mind, the intellect of the mind can never come upon anything which is new. The intellect of the mind cannot come upon anything which is unique or new. It is all recycled. You understand? But there is an intelligence within us which is far more subtle than the intellect. We are talking about that, and the Rishi is pointing to that. वह ही पूजनीय है, worthy of your adoration. इस श्लोक में ऋषि ने मन को भी अपनी जगह दिखा दी। वेस्टर्न थॉट क्या कहता है? We are because we can think. But this is such a limited understanding. We are so we can think. It's not that because the thoughts are, that is why we are. We are, first we are, then we can think. It's not because we can think, we are. That is not how it has to be understood. This is a very narrow-minded view of our own abilities. अब देखिए हम लोग जो इस ज्ञान में इस ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, we think, we consider that we have become slightly more internalized. Our view has become a little more internalized. जैसे गूगल में सब प्रकार की शक्तियां, सब प्रकार के ज्ञान भर दिए हैं, हाँ, वही वो बता सकता है जो उसमें भरा गया है। हाँ, वो फिर भी अपने जिसने भरा है उसको नहीं जान सकता, उसको नहीं जान सकता। और वो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस जिसकी हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात करी थी पिछले सेशन में, कि इस चैतन्य तत्व की वजह से हर एक इंसान को अपना फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस होता है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हम उसको अपने इंटेलेक्ट से उसको बाउंस बैक करते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। हमने बात करी थी ना कि समुद्र को देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, एक जन कहेगा कि हाँ ये तो बड़ी खौफनाक चीज है, बिकॉज ही हैज हैड अ बैड एक्सपीरियंस, अ ट्रेजेडी इन द ओशन।
एक जन जो कि एक ट्रेडर है, उसके शिप्स समुद्र के ऊपर से आते जाते हैं, he will look upon this thing as a means of communication. और एक है जिसको कि बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस समुद्र के किनारे हुआ है, तो he will look upon the beach as a very picnicky place where you can go and enjoy yourself, है ना? So everybody gets this personalized view, whereas a Google or a robot cannot get this personalized view because that Chaitanya Tattva is not there. Everything that we can make out of the intellect can be put over there in the robot, but the personalized thing, which is the God particle in us, which is the Brahma Tattva in us, that is absent. अब ये देखिए, हम लोग उस तत्व को क्यों नहीं देख पाते? एक तो ये बात है कि हमारा माइंड जो है वो बहुत सी चीजों से प्री ऑक्यूपाइड है. हम कितना भी कोशिश कर लें, तभी भी हम कुछ कुछ चीजों से चिपक के रहते हैं. किस चीज से चिपक जाते हैं? मैं एक औरत हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी चीज से हम चिपक जाते हैं. अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि उसको छोड़िए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है. उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करिए. केवल यह जानिए कि आपके भीतर एक कोर है जो किसी भी चीज से कभी चिपकता नहीं है. उसी कोर को हमको अपने फोरफ्रंट में लाना है. यू अंडरस्टैंड? हमने आज तक जो कुछ भी ह्यूमन कैपेबिलिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, उसी को एनहांस करने के लिए बनाए हैं. जैसे हमारे पास आंखें हैं, तो आंखों में देखने की शक्ति है, इसको एनहांस करने के लिए हमने टेलीस्कोप बनाया है. हमारे पास कान है, तो ज्यादा सुनने के लिए हमने माइक्रोफोन बनाया है, या हमने टेलीफोन बनाया है कि आपकी आवाज हम वहां से भी सुन सकते. समझे कि नहीं? तो अपनी ही चीज को एक्सपैंड करना है, एनहांस करना है. हमारे अंदर एक कोर है जो कभी भी किसी चीज से चिपका हुआ नहीं है. वो हमारे अंदर वो डिविनिटी है जिसको हमको महसूस करना है, और वो हम ऑलरेडी हैं, इसलिए हम उसको पा सकते हैं. We cannot acquire something new out of this thing, you know. It is already built in with us, and that is why it can be brought forward and we can get established in it because it is already there in us. तो हम आई एम जस्ट इंटरप्टिंग. आप जो कह रहे थे टेलीफोन की बात, तो उस पर एक बात ध्यान आई. आप तो कह रहे हैं कि चिपकने से दूर, पर अब तो बल्कि उल्टा होने लग गया है कि हम अपनी उन जो एड्स समझ लीजिए या जिससे हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनसे हम ज्यादा चिपक रहे हैं. हाँ, क्योंकि हमारी मायावी दृष्टि है. बिल्कुल, थोड़ा सा वो भी एक बड़ा माने व्हाट डू आई से, इट्स बिकम लाइक अ पैराडॉक्स. It has become like a paradox. Yeah, but we have to, it is not that we must not have all these amenities. Yes, we do. While having the amenities, we have to take advantage of them and yet know our core, so that we are in touch to make our functional life more comfortable for ourselves, and yet we must not be overwhelmed by the circumstances of this world, by being established in our core. So we are talking about that. There's no harm in having all these amenities at our beck and call, so long as we are established in our core. So देखिए, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और खोल रही हूँ कि ये चीज हमारे अंदर ऑलरेडी है. Suppose we look at nature and we see plants. Do the plants have to make an superhuman effort to burst into flower and to become to give birth to a full-blown flower? It is their natural state of development. I'm trying to tell you that to recognize the core is not something superhuman.
It is a natural blossoming. If we only do not put obstacles in our own path, we will automatically be self-realized if we do not put obstacles in our own path. What we have to do is, we have to quit the thought, oh, I am a small housewife, insignificant housewife. मैं अपने आप को ट्राइबल की जगह यूनिवर्सल देखूं. जब मैं कहती हूं मैं हूं, तो मैं उसके प्योर फॉर्म में, उसको प्योर फॉर्म में रखना चाहती. नॉट एज एन औरत कि मैं माँ हूं, कि मैं वाइफ हूं. इन सब उपाधियों से उस प्योर फॉर्म को मैं मलाइन नहीं करूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरी फ्लावरिंग as a as a being who is self-realized and who is above the sorrows and miseries of this world, वो automatically हो जाएगी. ये कहना चाहती हूँ. अगर हमको ह्यूमन फॉर्म मिला है तो हम इंट्यूटिवली उस ब्रह्म को जान सकते हैं. जो हमारी पहली कहानी में था कि हमको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी को शार्पन करना है. 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 और 11वीं मन, इनका कोई रोल नहीं है. उस रियलाइजेशन में इन ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का या मन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. इनडायरेक्टली all these things are necessary for us to have that intuitive understanding. अब हम जैसे कि अगर हम नेचर में जाते हैं, प्रकृति की बात हुई ना, पेड़ पौधों की बात हुई, तो मेरे को एक ध्यान आया कि हम अगर नेचर में जाते हैं तो वहां पर अगर हम शांति से एक जगह बैठे तो थोड़ी सी देर हमको बहुत तरह की आवाजें भी सुनाई देंगी जंगल में. लेकिन फिर हम अपने मन में एक उस ऑल परवेडिंग शांति को भी साइमल्टेनियसली सुन सकेंगे. एक तो हुई जंगल के जानवरों की बहुत सी आवाजें जो हमको इस कान के पर्दे के अंदर से सुनाई पड़ती. फिर हम अगर थोड़ी सी देर वहां पर बैठे रहे तो हमको एहसास होगा कि एक और तरह की आवाज है जो कि साइलेंस की आवाज है. और अगर हम थोड़ी और देर उसके साथ में बैठेंगे तो हमको सडनली ये फील होएगा कि उस साइलेंस की आवाज के भीतर जो चुप्पी है, वहां से उस चुप्पी की स्पेस ने इन सब चीजों को स्पेस दी है, इन सब दूसरी आवाजों को स्पेस दी है. और वो चुप्पी मैं हूं, वो स्पेस मैं हूं. तो आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि जैसे इस अर्बन जंगल में भी जब मैं बैठती हूँ तो मेरे को डिस्टिंक्टली मालूम पड़ता है कि ये सब तो आवाजें मेरे कान के पर्दे से मेरे अंदर आ रही है. और एक और जूम करके अंडरलाइन एक आवाज है जो कि ऑल परवेडिंग है. लेकिन मैं उस आवाज को भी जान रही हूँ, उसका भी साक्षी हूँ, इसलिए मैं उससे भी सटल. कान के पर्दे से जो आवाजें सुनती हैं वो थोड़ी और ग्रॉस होती है. जो एक ऑल परवेडिंग करके सुनाई पड़ती है वो उन आवाजों से सटल होती है. उससे भी सटल एक चेतना है जो कि उसको भी जानती है कि मैं उसको सुन रही हूं. वो है मेरा आत्मा और वो इस चीज को स्पेस देता है, धारण करता है. अंडरस्टैंड?
So try it to be there in this urban jungle. Listen to all the sounds. Listen to that fine, a sound bordering on silence. And then know that you are the witness of that silence. So this witness consciousness is subtler, the subtlest, not subtler, it is the subtlest, it is the ultimate. Do you understand? Is this clear? Has this made something click within you all? Tell me. Anybody will show your videos and give me a thumbs up or some reaction? Yes, yes. Very good. अमला जी, जैसे कि अभी हम लोग रहते हैं और चिड़ियों की आवाज कोयल की आती है, कभी कौवे की आती है, हाँ, तो हम उसे मतलब सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं, जो बैकग्राउंड में चली जाती है, हाँ, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो है वही है और रहेगा। बट ठीक घर है। में कुछ थोड़ा सा क्लैश हो जाए, कोई कुछ बोल रहा है, तो हम तुरंत हमारा माइंड उसका पीछा करेगा, तो इससे हमारी शांति बिगड़ जाती है आई गेस। तो उसको भी अगर हम ऐसे थोड़ा सा अनदेखा करें तो आई गेस ये थोड़ा हम पास पहुंच सकते हैं इस चीज से। वेरी गुड। एक तो ये बात हुई कि उससे अनदेखा करें, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आपने अपने मोमेंट्स ऑफ साइलेंस में इन तीनों तरह के साउंड्स को जाना है, तब वो जो साउंड्स आपके घर में हो रहे हैं, जिनको कि आपको खुद वहां मौजूद होकर डील भी करना पड़े उन साउंड से, तो भी आपके भीतर की शांति भंग नहीं हो, क्योंकि वो जो आपकी विटनेस कॉन्शियसनेस है वो न आती है न जाती है, वो हमेशा वहां रहती है। अंडरस्टैंड? फिर हम कहेंगे कि हमारी शांति भंग हो गई, तो आप वो कहानी याद करिए जो मैंने आपको पिछली बार बोली थी कि वो आदमी महात्मा के पास गया और वो बोला कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूं। तो महात्मा ने क्या कहा, तुमको मालूम पड़ रहा है कि तुम दुखी हो? तो उसने कहा हाँ, मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मिजरेबल हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या बोले, नहीं, अगर तुम मालूम पड़ रहा है तो तुम अपने दुख को जानने वाले हो, तुम दुखी नहीं। फिर वो उसने इस बात से उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने काफी देर विचार किया, तो फिर उसने फिर अगले दिन आकर किया, आहा महात्मा जी अब तो मैं बिल्कुल शांत हो गया। तो बोले कि फिर से डांटा कि तुम शांत नहीं हो, तुम अपनी शांति को जानने वाले। हमेशा अपने आप को अपने विटनेस कॉन्शियसनेस में लाना है, और जो भी ऊहापोह आपके घर में हो रही है उसको आपको उस लेवल पर एक बार उतर करके सॉर्ट आउट करके, फिर और सॉर्ट आउट करने के टाइम भी आपको अपने यूनिवर्सल प्रेजेंस से ही उसको सॉर्ट आउट करना है, नॉट आपके पर्सनल प्रेजेंस से। पर्सनल में मैं कैसे अफेक्ट कर रही हूँ उसको बाजू रख करके, जब आप यूनिवर्सल से उसको सॉल्व करें, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हाथ में लेकर, जैसे गुरुदेव करते, तब आपके सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा और आप हर तरह से अनडिस्टर्ब। तो आप 7वां है यत् चक्षुषा, ओके, चक्षुषा न पश्यति येन न पश्यति येन न तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम् त्वं विद्धि नेदम् नेदम् यदित् यदिदम् उपासते। यदिदम् उपासते। उपासते। हाँ, और 8th वर्ड्स भी अभी साथ में पढ़ देती हूँ, क्योंकि इसमें भी वही थॉट रिपीटेड है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति न शृणोति येन येन श्रोत्रभिदं श्रुतम्। विदं श्रुतं श्रुतम्। हाँ, तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम् तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम् नेदम् यदिदम्
upasate. यद्यदम यद्यदम उपासते। upasate. That which one sees not by the eyes, that by which one's eyes see, know that alone to be Brahman, not this which the people worship. Or that which one hears, not by the ear, that by which this hearing is heard, know that alone to be Brahman, not this which the people worship. ठीक है? That which one sees not by the eye. तो जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो मन की आंख से कुछ दिखता है ना. फिजिकल आंख से तो पूरा संसार दिखता है, लेकिन जब हमारी आंख बंद होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कहा, किसको? नरेंद्रनाथ विवेकानंद को, कि हाँ, मैं उस भगवान को, उस तत्व को उससे भी ज्यादा क्लियरली देख सकता हूं जैसे मैं तुमको देख रहा हूं. तो क्या वो उनको ऐसे ही धोखाधड़ी की बात कर रहे थे? वो उसकी बात कर रहे थे जो हमको बंद आंखों से हमारे नजदीक एकदम आ जाता है. बंद आंख करी तो आपको क्या दिखता है? माइंड चुप है, पास्ट प्रेजेंट का सोच नहीं रहा है. बंद आंख से आपको क्या दिखता है? एक बहुत बड़ा स्पेस दिखता है कि नहीं? ये बताइए मुझे आप. दिखता है ना? स्पेस दिखता है कि नहीं? बहुत बड़ा साइलेंस और स्पेस. बहुत बड़ा साइलेंस और स्पेस दिखता है. ठीक है ना? तो जब हमको वो बहुत बड़ा साइलेंस और स्पेस दिखता है, तो हम उसको क्यों नहीं सच मानते? ये चमड़े की आंखों को ही क्यों सच मानते हैं? ये चमड़े की आंखें तो कितनी बार धोखा देती है ना. इसके बारे में भी हमने बहुत बार बात करी है कि हमको तो पृथ्वी तो लगती है फ्लैट, लेकिन है वो गोल. सूरज तो लगता है कि वो अस्त हो रहा है और वो उदय हो रहा है, लेकिन ना सूरज अस्त होता है ना उदय होता है. तो ये चमड़े की आंखें तो बहुत बार हमको धोखा देती हैं. तो जो हमको बंद आंखों से कहीं गहराई से जो हमारे पास एकदम आ जाता है, उसको हम लोग क्यों नहीं अहमियत देते? जिसके बल पर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को बोला कि मुझे वो तुमसे भी ज्यादा क्लियरली दिखता है. क्यों नहीं हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देते? Amla Bhabhi, it's like seeing a video. It's It like is like seeing a seeing video with your consciousness. No, but there are no drishya. It is like seeing No. the Yeah. screen of a TV on which the film has stopped. Okay. It is like seeing that shunya, which is your reality. From where have you emerged? Just think about that. Well, somehow when you were explaining, I got the feeling that, as if you can internalize the whole thing, as if it's like going on. I mean, you don't need to see it outside. You can sort of. So those are the impressions that you are still carrying on in your mind, and your mind is projecting some forms. Yeah. I'm saying, Yeah. I'm not exactly. talking about that. Okay. That is the dream world in which you are. I'm not talking, I'm saying when your mind is already still, when your senses, you don't need to depend on your senses. Then what comes at you? Become aware of that. If you keep on seeing from your eyes, what will happen? Today you are sad, tomorrow you are happy. There is something inside of you which remains untouched by the sorrow, misery, turmoil, peaks of joy,
it is always constant. On that screen, you can make out that today I am unhappy, today I am sad, today I am feeling pleasant. There is that constant feature in you which allows you to have the experience of joy and sorrow. You understand? I am asking you to catch that constant feature within you. Beyond that, the you in you remains unblemished. We feel, here again, Manisha, your point has come. We feel we are either bound or free. Now, what happens when we feel we are bound? Then we want to move towards freedom. And when we want to free ourselves, then we make a lot of, we do a lot of activities, we make a lot of karmas, and we get entangled, or we get, we get swept by this wheel of karma. And it all happens because we get the feeling, I am dissatisfied, I am unfulfilled, I am bound, I want to move towards freedom. Now, if I'm the type of a person who gives importance to money, then I will say, if I have lots of money, I will become free. Whatever is my particular personality trait, I will start moving towards that. You understand? So this is how we get entangled in the karma, or in the wheel of karmas. The paradoxical thing is that if you feel you are free, this is another thing. If you feel that you are free, it is in comparison to being bound. जैसे कि आज आपको एक 8 बाय 8 के कमरे में बंद करा, तो आपको बहुत थोड़े से दिन में आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, तो आपको एक बहुत बड़े घर में रख दिया, तो आपको थोड़े से दिन फ्री लगेगा, फ्री, लेकिन फिर आपको बाउंड लगेगा कि I can't go out of this house, this is not fair. तो इस तरह से हम लोग कभी भी, जब तक हम अपनी असलियत को नहीं जान पाएंगे कि आई एम दी ऑल, तब तक हम अपनी लिमिटेडनेस के कारण डिससैटिस्फाइड होते रहेंगे और कर्म के चक्कर में पड़ते रहेंगे. और अगर आज ही मैंने जान लिया कि मैं तो फ्री हूं, तो फिर मुझे कोई मेरे अंदर में कोई ये डिससैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा. मैं अपनी मस्ती में, my life will be an expression of my joy, and my work will be what is required by the society, what is required by the environment, what is required by the planet. I will move towards that because my personal needs have become very limited. So I will be able to see the clear perspective, the picture with the right perspective. My perspective will become correct. ब्रह्म को हमारे शास्त्रों ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है. निर्विशेष, it does not have any special features. It is not special. It is equanimous. It is the same. ब्रह्म को निर्विशेष कहा है, कॉमन कहा है, साधारण कहा है. लेकिन ईगो क्या चाहता है? विशेष होना चाहता है. ब्रह्म साधारण रूप से, समान रूप से सब में है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हर गैजेट को पावर दे देती है और गैजेट अपने हिसाब से उसको एम्प्लॉय करता है. जैसे कि पंखा है, वो पंखा चलने लगता है. जैसे कि प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करने लगता है. हाँ, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक ड्रिल है, वो होल बनाने लगती है.
हर एक अपने हिसाब से उसको यूज करता है। तो ब्रह्म इज दैट तत्व which gives the sentience to various gadgets, whether it is in this body or in hundreds and thousands of bodies. वो पत्थर में भी वैसे ही विराजमान है, लेकिन पत्थर तो ये सब काम नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वो फैकल्टी नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। इसमें ब्रह्म की कोई बात नहीं है कि ब्रह्म वहां पर कम या ज्यादा है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म समान रूप से सब जगह है। अभी देखिए, हम लोग सोचते हैं कि जब ईगोइस्टिक होते हैं तो वी नीड टू बी स्पेशल, लेकिन कुछ ईगोइस्टिकल लोग ह्यूमिलिटी को भी अपनी स्पेशलिटी बना लेते हैं। इससे हमेशा सतर्क रहिए। ह्यूमिलिटी कैन एक्चुअली बी a very strategizing thing. If somebody is posing to be extraordinarily humble, then he may be strategizing to please you or to do some other ulterior motive he may be having. So neither be extraordinarily humble nor extraordinarily special. Just have simplicity as your biggest ornament. Simplicity, if that is your ornament, you are that much closer to the Brahma Tattva, because its main qualification is its simplicity. और हम में वो कैसे आ सकती है वो simplicity कि if I operate from my existential I, from the I of being a human, then the simplicity will automatically be present in all my actions, deeds and words. You understand? एक और बात बहुत ही खूबसूरत है, जैसे हमने ये सब बात करी कि भाई मूर्ति पूजा के बारे में, लेकिन हम जब उस एक मूर्ति के अंदर डिविनिटी देखते हैं तो हमारा मन एक डिवोटी के जैसा हो जाता है, और उस डिवोटी में जब भी हम डिविनिटी को ऑनर करते हैं तो हमारे अंदर इनोसेंस आ जाती है, एक चाइल्ड लाइक ह्यूमिलिटी आ जाती है। तब उस चाइल्ड लाइक ह्यूमिलिटी को लेकर के हमारी वो इंट्यूटिव अवेयरनेस जाग जाती है, जिससे कि हम उस एसेंस को अपने अंदर पकड़ सकते हैं। नहीं तो हम कुछ बनते रहते हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ चाइल्ड लाइक इनोसेंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। हम लोग बाल कृष्ण को पूजते हैं, क्रिश्चियनिटी में इन्फेंट जीसस को पूजते हैं, है कि नहीं? और हम लोग देवी पूजन के टाइम में छोटी छोटी बालिकाओं को पूजते हैं। हम लोग एक किसी भी कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी का बच्चा हो, उस बच्चे में, बच्चे की इनोसेंस की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। We find the innocence extremely endearing. तो ये जब हमारे अंदर एक इनोसेंस जग जाती है, किस तरह से जग सकती है? By approaching the divine with honor in our hearts. इसलिए हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं एक भगवान है, एक उसकी सत्ता है, एक डिविनिटी है, we have to honor it. उससे हमारे अंदर इनोसेंस आ जाती है। तो अब हम 9th वर्स कर लेते हैं और उसके बाद में आपको जल्दी से ये एक मेडिटेशन के थ्रू ले जाना चाहती हूँ, जो कि 5 मिनट की ही है,
यत् प्राणेन न प्रणति येन प्राणः प्रणीयते। मैं ही कुछ जल्दी से पढ़ देती हूँ। यत् प्राणेन न प्रणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदद यदि मुपास्ते। है ना? तो इसमें क्या बताया है कि जिसको वाइटल एनर्जी नहीं चलाती पर जो वाइटल फोर्स का भी फोर्स है या लाइफ देता है, तो वो ही ब्रह्म है। और नो दैट अलोन टू बी ब्रह्मा, नॉट दिस विच द पीपल वर्शिप। तो देखिए, जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या शुरू में करते हैं? आई एम हियर, ब्रेथ इज मूविंग, सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग। ये सब हमको आराम से दिखाई देता है। अब हम यहीं पर उसको छोड़ेंगे, यहां पर उसको छोड़ दीजिए, इस थॉट को यहां छोड़ दीजिए। नोटिस दैट बाय एंड लार्ज यू नेवर फील योर बॉडी। अब इस सेशन में जो भी बैठे हुए हैं, मुझे साफ साफ बताइए, आप लोग को किसी को भी अपनी बॉडी महसूस हो रही है क्या? नहीं। किसी को भी अपनी बॉडी नहीं महसूस हो रही? नहीं। There is only a feeling of I am. I am की feeling है ना? It is like a wave feeling I am. This wave rises and ebbs by the movement and current of the ocean. वेव किस तरह से पैदा होती है और किस तरह से अपने आप पैदा होती है क्या? ओशन के मूवमेंट, ओशन के करंट से वेव उठती है, वेव ढलती है ना? We are like little waves in that ocean of consciousness. अब हम लोग कौन से ओशन में हैं? In the ocean of consciousness, we are little waves. That ocean of consciousness is permeating every aspect of the wave. वेव के अंदर पूरा ओशन है कि नहीं है? अभी तक मैंने मेडिटेशन शुरू नहीं करी है, अभी मैं उसके ऊपर आने वाली। Hence every wave is, अभी देखिए, every wave is simultaneously an insignificant wave, or if the wave so chooses, it can identify with the entire ocean. Either we can identify with our limited personality of being a wave, or we can identify as being the whole ocean, which is our true reality. Suppose I was to ask you, is a wave or is it water? Water. If it is water, it has got temporarily the name and form of a wave. But really it is water. Water is its being. Wave का being क्या है? Water है. बेसिकली आपने अमला भाभी पहले भी बतलाया था that the wave cannot be without the water, but Exactly. the water is there without the wave also. Yes. ये बात आपने 2-3 बार हम लोगों को कई लेसन Yes. समझाई, जब आप समझा रहे थे कि ये जो है वेव Correct. और वाटर का जो संपर्क है Correct. वो ऐसा ही है कि ये इसके बिना रह सकता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस इसके बिना नहीं है. Once we know that water is the all-powerful, will we want to digress towards anything else? I want to ask you. At this time, when we realize that we are water, we become transparent. We no longer are a wave. We have become totally transparent. Even when there is pain, what we feel is the pain. We do not feel the body. When we are transparent, life becomes much easier, and all the points of the basic and advanced course are automatically covered. बस एक छोटा सा आपको
ये एक हिंट देती हूँ कि थोड़ा समय नेचर के साथ बिताइए, उसकी साइलेंस को महसूस करिए, उस साइलेंस से एक हो जाइए, फिर आप देखिए कितनी जल्दी इस ब्रह्म तत्व का एहसास आपको होगा. Now, let us give ourselves this one more opportunity to really connect with our own reality. As we are sitting for meditation, if any thought, feeling, or image appears, let it be. Don't bother. अभी अभी आंख बंद करिए ना, तो जैसे कविता जी ने कहा था, कुछ कुछ पिक्चर्स आती जाएंगी, उसके बारे में अनकंसर्न्ड हो जाइए, indifferent. Now I'm asking you, just now, do you need anything? अभी तो आप 5 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठे, इसमें आपकी कोई नीड है क्या? No need. Therefore, you don't need to hold on to anything. ये 5 मिनट आप सब चीज को छोड़ करके बिता सकते हैं. Thoughts are merely like clouds passing. Notice that thoughts are passing, but you are not passing. Be aware of this. At this moment, nothing to reach, nothing to create. किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. Nothing to reach, nothing to create, nothing to change, nothing to control. For 5 minutes, you can hold this thought. Nothing to attain. You are absolutely relaxed. Notice, you are not waiting. Neither are you expecting anything. You are not striving. You are effortless. Is there any next for you? यहाँ पर बैठे हैं, कोई नेक्स्ट की तरफ तो कुछ मन नहीं जाता ना. Past, future is meaningless. Simply by not combining the sense of self, ये जो आपके अंदर भी सेंस है, ये सेल्फ की सेंस है. इसको कोई थॉट के साथ, फीलिंग के साथ जोड़िए ही मत. अपने आप में एक कंप्लीटनेस और होलनेस है. In this completeness, you are at the height of your being, and you have arrived at this effortlessly. This is your true self, सहज स्वभाव. ये तुम्हारा घर है. This is my place. Peace is my fragrance. Silence unbound. See how simply you have found this kingdom of unbound silence. Awareness never came. It was always there. Since it was always there, it cannot go. You are stillness in the heart of all movement, the unchanging in the midst of continual change. आपने सुना होगा एक शून्य की अवस्था होती है. आपने ये पढ़ा भी होगा, पर आज आपने इसे जाना है. Because indeed you are resting in your own awareness, one with your Sakshi Swarup.
There is no need to even believe in this. It's not ki ha, I believe in this. Know this. Seeing without eyes, knowing without mind, being without becoming. For a time, you lived unaware of your true nature. Now you know and are at ease with yourself. Are you cursing anybody, judging anybody? No. You are happy inside your own self. Marinate your mind in this knowing so that when you are pushed in the world of changes, you will know the unchanging. When you are in the midst of noise, you will be the silence. But do not speak about it. In all your ways, remain natural. ये जान करके, अपना self experience करके, natural जीवन बिताना है. What is the past for you? अपना self जानने के बाद, past और future और present, इनका कोई meaning नहीं रहता. You are vast and unbound. Keep your attention here. Mind will come to test you. An activity that must happen, you cannot fail. Mind को अपना नौकर बना लो, not your master. Remember that you are the unchanging one. Remember this deep inside, the witness of all comings and goings. You are yourself the life and the witness of that life. Abide in this and be spontaneously happy, without reason happy. Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky, subtlest am I. I cannot be bound, burnt or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Beyond time, space, or causality, I am the joy and ecstasy. I am the joy and ecstasy. Essence of flowers and delicacy, the all-pervading unity, the permeating infinity. Immaculate, I am bliss. Life and all that is lifeless. Form and all that is formless. The universe unites in me. One in all and all in me. Universe unites in me. One in all and all in me. Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky,
Subtlest am I cannot be bound, burned or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Let's stop here because the song is over. And it will be nice if everybody expresses themselves a little bit. आज कुछ समझ में आया कि वो अंडरलाइन तत्व है क्या? थोड़ा हाँ, थोड़ा कविता जी। कमला भाभी थोड़ा थोड़ा है, देखिए एक संग ग्रास्प नहीं होगा इसको, तो जैसे आप बोल रहे हैं धीरे धीरे जितनी बार इसमें इस मोड में जाएंगे, जब हाँ। कह रहे हैं कि वो जो नेचर के संग बैठ के साइलेंस महसूस करो, ये करो, तो जितनी बार उस मोड में जाएंगे थोड़ा शायद ज्यादा समझ आएगा, एक फीलिंग आएगी। या अभी आपने जो स्काई, लिमिटलेस स्काई की बात करी, तो दिस वाज कनेक्टिंग टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट नेचर एंड वाटर. Yes, exactly. So I mean, like you were explaining that you are not you are just one with the universe kind of thing. जब आपने अपनी बॉडी को महसूस करना बंद कर दिया, ठीक है, वहां से आप जाइए, अब आप ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब आप ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब आप वापस अपने आप को उस पहली वाली हिप्नोसिस में मत रखिए। अब आप उसके अंदर भीतर जाइए ना, जैसे आप आंख बंद करते हैं तो आपको क्या दिखता है, वो आप है। जब आपका माइंड बंद हो जाता है, पहले तो आपने कहा आपका माइंड चल रहा था तो आपको बहुत सी इमेजेस आने लगी लाइक अ टीवी स्क्रीन, वो तब आप अपने माइंड के दृष्टा हो गए, आपका मन अभी भी सारा प्ले कर रहा है। आपका माइंड जब बंद हो जाता है तब आपको बंद आंखों से जो दिखता है, पास्ट प्रेजेंट नहीं रहता, कोई प्री ऑक्यूपेशन नहीं रहता, कोई वेटिंग नहीं रहती, कोई नेक्स्ट की वो नहीं रहती, कुछ करने को नहीं रहता, कोई स्ट्राइविंग नहीं रहती। वो जो स्टेट है आपकी, वो आपका सोर्स है, उससे आप पैदा हुए हैं, उसमें आप लीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे डेथ के बाद में, और आप रहेंगे, क्योंकि अब आप वो स्पेस है। ये आपका हिप्नोसिस है, ये आपने फॉल्स आइडेंटिटी को जो पकड़ रखा है, आप नहीं छोड़ने को तैयार है। आप ट्राइबल बनी हुई है, यूनिवर्सल नहीं होना चाहते। थिंक अबाउट दैट। और किसी को कुछ कहना है? कमला भाभी, आज एक मैंने सुबह ऐसे ही हुआ कि उपनिषद के ऊपर एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, जैसे मेरे को अच्छा लगा कि जैसे प्लांट फोर्सफुली अपने आप को कुछ नहीं करके ब्लूम करता है, हाँ, सहज भाव से, वो हाँ, हमें सहज भाव से अपने हाँ, आप को में ले जाना है। हाँ, ये कुछ फोर्सफुली नहीं है, नहीं, फोर्सफुली हो नहीं सकता, हो ही नहीं तो सकता। जैसे हमने अपने आप को खाली एनहांस कर सकते हैं, हम कुछ नया बन नहीं सकते, हम ब्रह्म बन नहीं सकते, हम ऑलरेडी ब्रह्म है, उसको महसूस कर सकते हैं। और जो हमारी उपाधियों के रोड़े हैं, बस हाँ, उनको हटा देना है। हाँ, तो हट रास्ता गए हैं, वो हट गए, है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। Because first and foremost you are your existential self. Yes, yes. Very nice. और साइलेंस में वो आवाज सुननी है, ये सब बहुत अच्छा लगा सुन। आती है ना वो आवाज, हाँ, वो आवाज एक जुम आवाज आ जाती है, कितनी भी नॉइज हो उसके भीतर में वो सुनता है, लेकिन मैं जो कि उसका भी विटनेस कॉन्शियसनेस हूँ, उस तत्व को पकड़ना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ में इसको खत्म करते हैं। आज हमारा पार्ट 1 ऑफ केनोपनिषद खत्म हो गया है।